Hello friends, welcome back to my channel. Today our topic is subject library and information science. This is the contents for the postgraduate course under MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये EPG पाठशाला जो कि इनफ्लिपनेट का एक प्रोग्राम है, इसके तहत आता है। इसमें बहुत सारे जो PG लेवल के कोर्सेज होते हैं, इसका यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स है। तो आज हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये पेपर 1 है। पेपर 1 नॉलेज सोसाइटी, और इसका मॉड्यूल 1 जो जनरल इंट्रोडक्शन टू कोर्स ऑन नॉलेज सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। नॉलेज सोसाइटी किसको कहते हैं? द वर्ल्ड इज in the process of structural transformation for nearly 3 decades. This process is multidimensional and closely associated with the emergence of new technological paradigms based in information and communication technology that took shape in the last quarter 20th century. जो 20th सेंचुरी या 20th सेंचुरी के बाद वर्ल्ड एक न्यू डायमेंशन में पहुंच चुका है, जो कि मल्टी डायमेंशनल हो चुका है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी इवोल्यूशन हुआ है। हाउएवर the diffusion of knowledge has not been even around the world throughout the history. Societies and community have shaped technology depending on need. तो हम लोग जो हमारा सोसाइटी है, हमारे नीड के हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। वैल्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल हु यूज द टेक्नोलॉजी। ICT are particularly sensitive to culture value and social uses on technology itself. लेकिन आज जो ICT का इवोल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग का सोशल चेंजेस हो चुका है। द टर्म knowledge society certainly does not necessarily convey the same idea to all. This should be evident from the history of internet. The 5,000 of users were mainly those who developed the technology. However, in second decade of 21st century, network society is already a reality, at least for many segment of our society, academic, business and government. तो देखा जाएगा अगर सेकेंड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी में, जो कि ये 2011 से लेकर 2022 तक नेटवर्क सोसाइटी का बहुत सारा चेंजेस हुआ है। एकेडमिक फील्ड में हो सके, ये बिजनेस में या गवर्नमेंट में। इट इज़ सर्टेनली नॉट एज इफ द ट्रांसफॉर्मेशन आर इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। What characterize the network society? That it constitute a system of socialized communication beyond the mass media system that characterize the industrial society. तो आजकल का जो सोसाइटी है नॉलेज सोसाइटी, पहले जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी था, तो इसके बीच में लिंकिंग करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। The network society is not the future that we must reach the embracing the new technological paradigm. It is our society in different degree and under different form depending on countries and culture. Our understanding of nation of knowledge society must start from this basic fact. Okay, तो ये सबको समझने के लिए हमें नॉलेज सोसाइटी के बारे में जानना पड़ेगा। It is not any particular destination but is largely a point of departure. People, institutions, government, etc. do not have to do anything to develop the network society because it is already here. Policymaker, however, should realize that not every individual is included in network, and the building of true knowledge of society requires that everyone should be included in network. तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है या पीपल है, सब लोग को नेटवर्क सोसाइटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। In society that present unbalanced income distribution patterns, society that have not yet transited to democratic form of governance, in society with a large proportion of population still functioning illiterate, there is a danger that mere technological modernization may further widen this divide. तो आजकल जो डिजिटल डिवाइड हो चुका है, जो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग पहले इलिटरेट थे, आजकल लिटरेट हो गए हैं। तो ये इलिटरेट क्या करता है, टेक्नोलॉजी का डिवाइड कर सकता है। The statistical data on the access to ICT and opening to the global network clearly suggests that in many developing countries, including the newly emerging economic of Asia, such as China and India, considerably deficit and gap exist.
तो अगर वेस्टर्न कंट्री को देखा जाएगा तो वो लोग बहुत आगे हैं और नेटवर्क सोसाइटी टेक्नोलॉजी में, लेकिन हम लोग इंडिया, चाइना, ये जो साउथ एशिया के कुछ कंट्री हैं, ये लोग नॉलेज सोसाइटी में बहुत सारे गैप हैं. इस द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी डिस्कशन ऑन नॉलेज सोसाइटी has to be necessarily cross-cultural. Technological innovation by themselves cannot bring about needed transformation. It is necessarily has to based in organizational changes and institutional model that will lead to utilization of potential of ICT all development related activities. So without ICT nowadays we cannot access knowledge, we cannot live comfortably. So ICT the very important tools हम लोग को पता है. फिर हम लोग जानते हैं फैक्टर्स ऑफ डिजिटल डिवाइड. जो डिजिटल डिवाइड होते हैं वो क्यों होते हैं. ए यूनेस्को डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फैक्टर एज कंट्रीब्यूटिंग टू डिजिटल डिवाइड. तो डिजिटल डिवाइड में जो यूनेस्को का क्या कंट्रीब्यूशन है देखते हैं. पहले इकोनॉमिक रिसोर्स मीन्स हम लोग के पास जो पैसे होते हैं, जो भी एसेट होते हैं, ये सबको हम इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं. तो इकोनॉमिक रिसोर्स अगर किसी का अच्छा नहीं है तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये सच बात है. द कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल इन डेवलपिंग एंड पुअरर कंट्री ऑफ एक्वायरिंग एक्सेस टू नेटवर्क. फिर देखिए जियोग्राफी, एसिमेट्रिक बिटवीन द टाउन एंड कंट्री साइड. कुछ जो टाउन होते हैं, शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर, वहाँ पर टेक्नोलॉजी और आईसीटी का बहुत सारा यूजेस होता है. लेकिन देखा जाएगा जो दूर दराज जो इलाके होते हैं वहाँ पर नेटवर्क का अवेलेबिलिटी नहीं होता है जो गाँव में. ठीक है, तो जियोग्राफी भी एक फैक्टर है जो कि डिजिटल डिवाइड कर सकता है. फिर एजेस, young people are often at the forefront of uptake of technological innovation, but they are also the most vulnerable and most affected by difficult social and economic condition. जो यंग एज होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. बस जो थोड़ा एडल्ट लोग होते हैं वो इसको ठीक से एक्सेस नहीं कर पाते हैं. जेंडर इक्वलिटी, जो कि वोमेन और मैन, ज़्यादातर मैन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो कि मैन और वोमेन दोनों इक्वली एक्सेस करना चाहिए. फिर देखिए लैंग्वेज इज द मेजर ऑब्स्टैकल टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल. द एमरजेंस ऑफ इंग्लिश एज द लिंगुआ फ्रांस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में देखा जाएगा, आईसीटी में देखा जाएगा तो ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है. तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज जिनको पता नहीं है वो लोग ठीक से इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए डिजिटल डिवाइड भी हो सकता है. एजुकेशन एक बड़ा सा फैक्टर है, तो एजुकेशन के लिए भी डिजिटल डिवाइड हो सकता है. एम्प्लॉयमेंट, इन मैनी कंट्री इंटरनेट एक्सेस इज लिमिटेड टू वर्ल्ड ऑफ वार. द एक्सक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो मीन्स टू डिफेक्टो exclusion from cyberspace. Some of the significant recommendation and suggestion to overcome this barrier include invest more in quality education for all to ensure equal opportunity, increase places of community access to information and communication technology. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है, तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग अपनाएंगे तो जो बैरियर है, मतलब जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं. Increase the place of community, widen the content available for universal access to knowledge, making linguistic diversity of priority. ठीक है, increase women contribution to knowledge society. ठीक है, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए रोल ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर. जो डिजिटल डिवाइड जो हो रहा है इसको कैसे ओवरकम किया जाए और सोसाइटी में कैसे आईसीटी का नॉलेज डिसेमिनेट किया जाए, इसका मेन रोल जो होता है लाइब्रेरियन या इंफॉर्मेशन सेंटर का होता है. देखते हैं. लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर एविडेंटली हैव ए क्रूशियल रोल टू प्ले, स्पेशली एज प्लेस ऑफ कम्युनिटी एक्सेस टू आईसीटी in establishing inclusive knowledge society. A number of forces are currently driving the development of information society. These include globalization, economic liberalization, extensive use of ICT, digital knowledge resource, etc. तो ये सब काम जो नॉलेज सोसाइटी को आगे बढ़ाना, आईसीटी का नॉलेज को इम्पार्ट करना, ये सब काम लाइब्रेरियन का है. Knowledge society requires that we ensure equitable access to knowledge, resource and supporting the technology. Primary evolution,
क्राइटेरियंस फॉर द नॉलेज सोसाइटी शुड बी एक्सटेंड ऑफ पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सिटीजन। जितने सारे सिटीजन हैं, जो रिच हो या पुअर, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, सब लोग क्या करना चाहिए, नॉलेज सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। It is difficult to imagine any institution other than library, especially the public library, which can effectively serve a portal of entry to digital information world for every individual. The advent of Web 2.0 being in new digital lifestyle affecting every aspect of functioning of individual and organization. देखिए, तो लाइब्रेरी सेंटर जो कि एक नॉलेज सोसाइटी का पार्ट है, जो कि हम नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं। आजकल जो वेब 2.0 मीन्स न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो आ गया है, इससे हमारा लाइफस्टाइल बहुत ईजी हो गया है। द यूनिट इन दिस कोर्स आर एम एट एड्रेसिंग सम ऑफ द मेजर इशू डेट नीड टू बी एग्जामिन। द इशू आर बोर्ड बेस्ड। ओके, तो ये चैप्टर में हम लोग नॉलेज सोसाइटी के बारे में पढ़े और क्या क्या प्लान है देख लेते हैं। Knowledge society is indeed a very vast area, and there are cultural, sociological, legal, political, economic and technological dimension. तो जो नॉलेज सोसाइटी है इसका बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। व्हाट हैज़ बीन अटेम्प्ट इन द यूनिट इन दिस कोर्स इज टू गिवन एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट डायमेंशन। देखते हैं क्या क्या डायमेंशन दिया गया है। वी बिगिन बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नोशन डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। देयर इज ए यूनिट ऑफ थ्योरी ऑफ मॉडल। हम आगे पढ़ेंगे डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फिर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय 2 यूनिट आउटलाइनिंग द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज एंड नॉलेज मैनेजमेंट। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ LIS टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग एंड वाइडनिंग स्कोप ऑफ डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। Knowledge management, which has emerged as major activity, especially in corporate world, represent a new dimension of information storage. The area is increasingly being seen as specialization within the iSchool. iSchool means internet school. We then proceed to understand the various notion associated related knowledge society. आगे हम पढ़ेंगे knowledge society के से associate term. There are several closely related concepts and the terms, some of which are used interchangeably, and it's important for students to have an idea of all these related concepts. The notion of digital divide and factor contributing to digital divide are examined and explain the subsequent unit. The legal aspect of information and major area, more so in knowledge society and particularly for establishing of WTO. WTO means World Trade Organization. ठीक है, there are 3 units that exclusively and elaborately examine this aspect. The unit explain the intellectual property right. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के देखिए कि क्या होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ये सब आएंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सेंसरशिप, सभी के बारे में हम अगले मॉड्यूल्स में जानेंगे। The effort has been to provide an understanding of all associated issue and highlight the implication of barrier of information center. And information societies seek to look for information knowledge मेजर इकोनॉमिक फैक्टर। तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी नॉलेज सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी आर एक्सटेंसिव यूज ऑफ ICT इन गवर्नेंस। तो आजकल गवर्नेंस, कॉमर्स, एजुकेशन, हर जगह में ICT का यूज हो रहा है। 1 यूनिट एग्जामिन द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ e-गवर्नेंस, e-कॉमर्स, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, ईच एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। 2 unit examine this. Again, there is emphasis on how library and information center could utilize social media to enhance their reach. In a network society, the importance of information security cannot be overemphasized. The various security issues are examined in the unit. Okay. Finally, as information is widely seen as an economic factor, information industry has come to be focus of large industry from database. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बीच में कुछ समरी दिया गया था। ये एग्ज़ाम पॉइंट के भी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आज जो इंट्रोडक्शन क्लास था इसीलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल, ये सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।